Hello, good afternoon, SYBCom students. In the last week, we were discussing about the rights of consumer, that concept of rights of consumer and importance of the rights of consumer, caveat emptor to caveat vendor. Now we will discuss the consumer rights international scene. The development in the United States on the 15 March 1962, the bill for consumer rights was moved in the US Congress. During his speech, President John F. Kennedy had remarked, if a consumer is offered inferior products, if prices are exorbitant, if the drugs are unsafe or worthless, if the consumer is unable to choose an informed basis, then his dollar is wasted, his health and safety may be threatened, and the national interests suffer. John F. Kennedy John F. Kennedy had equated the rights of ordinary American consumers with national interests. He gave the American consumer four basic rights: explained right to safety, right to choose, right to, and right to be heard. That Kennedy recognizes the consumer are the largest economic group in the country's economy, affecting and affected by almost every public and private economic decision. तो जॉन एफ कैनेडी ने हमको यहाँ पे क्या बताया, उसने ये कंज्यूमर राइट अपने हिसाब से चार पार्ट में डिवाइड कर दिया. द फर्स्ट पॉइंट इज राइट टू सेफ्टी. The second point is right to choose. Then third point is right to, and the fourth point is right to be heard. और उसने क्या बताया कि जो कंज्यूमर है वो इकोनॉमिक वर्ल्ड का इकोनॉमिक बहुत बड़ा इकोनॉमिक ग्रुप है, उस पर ही पूरा वर्ल्ड चलता है. तो 13 years later, President Gerald Ford felt that the four rights constituted in the Kennedy's Bill of the Rights were inadequate for the situation where the most consumers are not educated enough to make the right choices. So he added the right to consumer education as an informed consumer cannot be exploited easily. While these rights serve the interests of the American consumer well enough, they did not cover the whole gamut because the global consumer did need, apart from them, other well-defined rights like basic needs, healthy environment and nutrition. तो उसने क्या बताया कि कंज्यूमर सभी पूरे दुनिया में फैला हुआ है, तो उसके हिसाब से उसके लिए वो बेसिक राइट, बेसिक नीड, हेल्दी एनवायरनमेंट और रिड्रेसल, अगर उसने कोई कंप्लेन किया है तो उसको ध्यान में रखते हुए सबको चलना चाहिए. द एफर्ट्स बाय कंज्यूमर इंटरनेशनल. द कंज्यूमर इंटरनेशनल, formally International Organization of Consumer Union, the umbrella body for 240 organizations in over 100 countries, expanded the Charter of Consumer Rights contained in the US Bill to the eighth, which is logical order grid. तो यहाँ पे आपको क्या बताइए कि एफर्ट्स बाय कंज्यूमर इंटरनल, एफर्ट्स बाय कंज्यूमर इंटरनेशनल. तो इसके हिसाब से क्या हुआ कि जो कंज्यूमर इंटरनेशनल है, जो कंज्यूमर है उन्होंने क्या बताया, ऐसे 240 ऑर्गेनाइजेशन और ओवर कंट्री 100 कंट्रीज में कर रहे हैं कि जिसको ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर राइट को ज़्यादा से ज़्यादा सराहा गया है. अभी हम आगे का पॉइंट देखते हैं. तो सबसे पहला द चार्टर हैड एंड सिग्निफिकेंस द significance as they symbolizes the aspiration of the poor and disadvantaged and the basic. The United Nations, the United Nations on April 1985 adopted its guidelines for the consumer protection. So considering the importance of Kennedy's speech to the US Congress, the resultant law, CI took the decision in 1982 to observe the 15 March as the World Consumer Rights Day from 1983. तो उसने क्या बताया
उसमें क्या कहता है कि वर्ल्ड कंज्यूमर डे को सेलिब्रेट किया जाता है कि यूनाइटेड नेशन के हिसाब से जो हम बोलते हैं कि जो हम दिस चार्टर हैड ए यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस एज दे सिंबलाइजेस द एस्पिरेशन ऑफ द पुअर एंड द डिसएडवांटेज। चार्टर में क्या बताया कि जो कंज्यूमर है उसको जितना हम सराहेंगे उतना हम बोलते उसका कहने का मतलब ये था कि जितना कंज्यूमर है उसको हम जैसे सराहेंगे तो क्योंकि वो पूरा वर्ल्ड का इकोनॉमिक ग्रुप है। तो यूनाइटेड नेशन के हिसाब से 1985 में उसने कुछ कंज्यूमर प्रोटेक्शन गाइडलाइंस अडॉप्ट किया और उसके हिसाब से कैनेडी ने वहाँ पे यूएस कांग्रेस में स्पीच दिया था। उसने एक डिसीजन दिया कि 1982 में उसने एक डिसीजन कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट ही ये सेलिब्रेट किया गया 1983 से वर्ल्ड कंज्यूमर राइट से ये सेलिब्रेट किया जाता है। अभी हम देखने वाले हैं राइट्स ऑफ कंज्यूमर राइट्स based on the CI, the Charter of Consumer Rights. Following rights have been internationally accepted. However, many countries, including India, have not recognized all eight rights. Right to the basic needs, access to the food, water and shelter are the basic any consumers like. कि यहाँ पे क्या बताया है कि हम जो बेसिक नीड होनी चाहिए कंज्यूमर की वो सेटिस्फाई होनी चाहिए कंज्यूमर की लाइफ से। उसको सब कुछ मिलना चाहिए कि फॉर एग्जांपल जैसे मिडिल क्लास को और हाई मिडिल क्लास को वो सभी फैसिलिटीज मिलती है वैसे सो बेसिक नीड जो हम बोलते हैं कि पुअर क्लास है सोसाइटी का उसको नहीं मिल पाती है। विदाउट दिस फंडामेंटल एम्यूनिटीज लाइफ कैन नॉट बी एग्जिस्ट कि अगर वो बेसिक नीड्स नहीं होगा कंप्लीट नहीं होगा तो लाइफ कैसे होगा जीरो होगा। अ वेरी क्रूशियल objective of consumer right is to ensure that the consumers have an ensured food supply, safe and permanent dwelling, and basic amenities like sanitation, potable water and power supply. तो ये जरूरी है कि पोर्टेबल वाटर होना चाहिए, पावर सप्लाई होना चाहिए, सैनिटेशन होना चाहिए, ये हमारे बेसिक नीड्स हैं। Then next point is right to safety. To be protected against the marketing of the goods which are hazardous to the health. कि जो मार्केट में हम जो चीज़ें खरीदते हैं तो उसमें हमारी हेल्थ के लेके कि फॉर एग्जांपल ऐसे बाजार में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं कि जो हमारे लाइफ हम खरीद तो हैं लेकिन उसका इस्तेमाल हमने किया तो हमारे लिए वो प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल जो थाली में हम खाना खाते हैं तो आजकल अभी ऐसा कोई भी फूड नहीं है कि जिस पे केमिकल ना छिड़का गया हो। तो ऐसा है जब हम चीज़ें खरीदी करते हैं तो उसका ध्यान में रखते हुए हमें खाना चाहिए। Then right to information that to be protected against the fraudulent that deceitful or the grossly misleading information, advertising and labeling and other practices, and to be given the facts that he needs to make informed choices. कि राइट टू इंफॉर्मेशन हम किसको बोलते हैं कि अगर किसी कस्टमर के साथ कोई चीटिंग हुआ है या फॉर एग्जांपल उसमें कहीं ये प्रैक्टिस चल रही है मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन चल रही है एडवर्टाइजिंग चल रही है लेबलिंग चल रहा है कि वो माल खरीदते टाइम उसको चीट किया गया तो उसको हम बोलते कि ये सब कुछ जो उसके साथ होता है तो उसको इंफॉर्मेशन मिलने का उसको हक है। देन राइट टू चूज to be assured wherever possible access to the variety of products services at the competitive prices and in those industries where competition is not workable the government regulation is substitute and the assurance of the satisfactory quality and the service at the fair prices। राइट टू चूज हमको क्या बोलते हैं राइट टू चूज हम उसको क्या बोलते हैं कि राइट टू चूज मीन्स उसमें होता है कि प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जिसमें हम बोलते हैं कि हमें चूज करने का हक दिया गया है लेकिन कि इन दोज इंडस्ट्री वेयर द कंपटीशन इज नॉट वर्केबल द गवर्नमेंट रेगुलेशन इज सब्सिस्टेड द एश्योरेंस ऑफ द सेटिस्फैक्टरी क्वालिटी एंड द सर्विसेज एट द प्रेजेंट कि जहाँ पे हम बोलते हैं कि ज़्यादा कंपटीशन नहीं है इंडस्ट्री ज़्यादा वहाँ पे हम बोलते कि वर्केबल नहीं है तो जिसकी गवर्नमेंट के हिसाब से जो गवर्नमेंट सब्सिट्यूट पे दिया जाता है तो वो जो कोई भी चीज़ें हो तो वो सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए क्वालिटी वाला होना चाहिए और फेयर प्राइसेस पे होना चाहिए। Then next point, right to be heard. To be assured that the consumer interest will receive the full and sympathetic consideration in the
formulation of the government policy and fair and expeditious treatment in its administrative tribunal. कि राइट टू बी हराम उसको बोलते हैं कि कंज्यूमर जो इंटरेस्ट है वो कैसा होना चाहिए, कंज्यूमर इंटरेस्ट कैसा होना चाहिए हमारा, राइट टू बी कंज्यूमर कैसा होना कि कंज्यूमर की जब हम बात करते हैं तो वो सेटिस्फाई होना चाहिए, उसकी वो कंप्लेन कर रहा है, उसका कोई भी प्रॉब्लम है, वो उसको जो ट्रीटमेंट दी जाती है तो उसको ध्यान में रख के वो उसको सुनना मीन्स what we can say that to hurt consumer it is the duty of shopkeeper. Then right to redress, that it is to protect the consumer interest that consumers have been given the right to obtain redress. Any consumer loss without an effective redressal mechanism will be like a tiger without tail. The right to redressal puts the fear in the mind of the seller and confidence in the mind of the consumer. Redressal means change करना, ये हक जो दिया गया है इसकी वजह से कंज्यूमर फिर जुड़ने चला जाता है, और जो हम बोलते हैं कि जो सेलर होता है तो सेलर के माइंड में या सेलर के दिमाग में एक डर सा होता है कि हाँ बाबा, फॉर एग्जांपल कभी कभी ऐसा होता है कि हम छोटी बड़ी चीज़ें लेती है लेकिन उसका बिल नहीं मांगते हैं, तो फॉर एग्जांपल सही में उतनी चीज़ लिया है कि नहीं, उसका सही प्राइस क्या है, तो इसकी वजह से की पहचान होने की वजह से या कुछ ऐसा रिश्तेदार होने की वजह से जिसकी वजह से हम वो हम बोलते हैं कि बिल नहीं मांगते हैं या कुछ भी हो सकता है, बिल जब हम मांगते नहीं हैं तो वो उसका डिसएडवांटेज ले सकता है, तो उसको कंप्लेन करने की सपोज डिसीजफुल गुड्स आ गया तो फिर उसको कंप्लेन कंज्यूमर की कंप्लेन को सराहना चाहिए। उसके आगे का पॉइंट देखते हैं, राइट टू consumer education. The consumer education empowers the consumer to exercise their consumer rights, to exercise their consumer rights, consumer rights, and it perhaps the single most powerful tool that can take consumer from their present disadvantageous position, one of the strengths in the marketplace. Consumer education is dynamic, participatory, and most required by the hands-on and practical experiences. तो कंज्यूमर हम बोलते हैं ना कि कंज्यूमर राइट में कंज्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या बोल सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको अगर किस तरह से किया जाए, कंज्यूमर को किस तरह से देखा जाए, कंज्यूमर को किस तरह से चीज़ें लेनी चाहिए, ये जो हम बोलते हैं कि एजुकेशन कंज्यूमर को मिलना चाहिए कि मार्केट प्लेस में सभी उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, वो उसको पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल कोई चीज़ें लेती है, कोई चीज़ें खरीदता है तो वो चीज़ें कितने में कितनी उसका सही प्राइस क्या है, या फॉर एग्जांपल उसको रीजनेबल प्राइस कहाँ पे मिलेगी, ऐसा एजुकेशन वहाँ पे देना चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट इज The next point is right to safe environment. The consumer should protect from the environment pollution by use of environmental substantial products and services and effective measures to curtail the environmental pollution. तो उसमें क्या बताया है कि हाँ एक राइट टू सेफ एनवायरमेंट कि कंज्यूमर के लिए कैसा होना चाहिए, एक एनवायरमेंट protected from environment pollution by the use of environmental substantial products and services and effective measures to curtail environmental pollution. Environmental pollution कम से कम हो और ज़्यादा ना हो उसका भी ध्यान रखना चाहिए एज अ कंज्यूमर, ये हक भी उनको दिया गया है कि फॉर एग्जांपल ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि फॉर एग्जांपल ज़्यादा जाते ऐसे टूरिस्ट वगैरह या हम सब या हमें कुछ ऐसी बुरी आदत है कि हम फॉर एग्जांपल खाते खाते चलते रहते हैं, लेकिन वो जो पैकेट वगैरह होता है वो हम रास्ते में ही फेंक देते हैं जिसकी वजह से एनवायरमेंट पॉल्यूशन होता है, तो वैसा आपको एनवायरमेंट पॉल्यूशन न हो वो भी आपको हक दिया गया है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर राइट। द नेक्स्ट कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है,
While we all like to know about rights to consumers and exercise them, we hardly ever accord. Just a minute. While we all like to know about rights as a consumer exercise them, we hardly ever accord the same importance and urgency to the consumer responsibility. Consumer rights and responsibility are intertwined, and without sharing consumer responsibility, consumers will find very difficult to enjoy their rights a long time basis. The consumer responsibility may play very important role is not only checking the market but also restricting the unnecessary consumption. Following the points to be summarized, that the consumer need to feed cautiously in the marketplace. They should empower themselves by knowing the law. तो जैसे हमने अभी कंज्यूमर राइट्स के बारे में बोला, वैसे कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंज्यूमर राइट्स एक दूसरे से जुड़े हुआ है, लेकिन ज़्यादातर जो कंज्यूमर होता है वो अपने राइट इतने लंबे बेसिस पे इतना एंजॉय नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले मार्केट में उसको कॉशियसली उसकी नीड्स क्या है वो उसको पता होना चाहिए, और इसके लिए हम बोलते कायदे कानून भी उसको पता होना चाहिए। द कंज्यूमर मस्ट मेक द कंज्यूमर मस्ट मेक एवरी एफर्ट इन सेल्फ टू प्रोडक्ट और द सर्विसेज। तो कंज्यूमर को अब खुद को ये पता है कि हम कौन सी चीज़ें हमको कौन सी प्रोडक्ट और सर्विसेज यहाँ पे मिलती हैं। Consumer must make every effort to inform himself of the product or services. For example, कि कोई भी हम फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट लेते हैं, तो वेदर इट इज़ सुटेबल टू मी और नॉट ये हमको पता होना चाहिए। कि आए मार्केट में नया लॉन्च हुआ है, आया लिया उठाया फिर घर पे लेके आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आखिर देखते हैं, द कंज्यूमर मस्ट मेक द कॉन्शियस एफर्ट टू रिड्यूस द कंजम्पशन, चूज द एनवायरमेंट फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव एंड कंजर्व एनर्जी। तो कंज्यूमर को प्रोडक्ट खरीदते टाइम ऐसा एनवायरमेंट फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव हो वैसा प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। सेफ वेस्ट डिस्पोजल इज कंज्यूमर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसका डिस्पोजल जल्दी से हो और सेफली हो, ऐसा प्रोडक्ट और लेना चाहिए कंज्यूमर की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी। देयर आर 4 आवर्स ऑफ कंजम्पशन। सबसे पहले रिड्यूस, रिसाइकल, रिफ्यूज एंड रीयूज आर नॉट जस्ट द कंज्यूमर prerogative, but also his it is also consumer's responsibility to endorse, support and encourage the use of safer and eco-friendly products. तो कंज्यूमर को कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए, उसका सही तरीके से डिस्पोजल हो, सेफ डिस्पोजल हो, उसको रिसाइकल हो, उसका रीयूज हो, ऐसे प्रोडक्ट लेने चाहिए। तो कंज्यूमर मूवमेंट नीड्स active participation of the consumer to lobby with the government and pressure the market to deliver the better quality and to support consumer right complaints। कि कंज्यूमर मूवमेंट आपके लिए क्या मांगता है, तो कंज्यूमर मूवमेंट आपके लिए मांगता है कि प्रेशर द मार्केट टू डिलीवर। कंज्यूमर ऐसा मांगता है कि अच्छे से अच्छी गुणवत्ता वाला माल उसको मिले, और जिसकी वजह से कंज्यूमर राइट कंपेनियन को एक सपोर्ट मिले। कि फॉर एग्जांपल आप पैसा खर्च कर रहे हो लेकिन आपको अच्छे गुणवत्ता वाला माल नहीं मिलता, या बेटर क्वालिटी का माल नहीं मिलता, तो फिर आप वो माल लेना नहीं पसंद करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज young consumers have the responsibility shun the fast or junk food, be active in the environment conservation activities, stop the use of firecrackers and other polluting agents and save the paper। तो पेपर ये सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेव द पेपर, कि फायर क्रैकर्स का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जो
ऑब्जेक्टिव्स है कि फॉर एग्जांपल ऐसे प्रोडक्ट ऑब्जेक्टिव्स है कि जिससे पोल्यूशन बढ़ता है वैसा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।